संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार ने सत्र को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पेपर लीक पर चर्चा के आश्वासन पर गतिरोध नहीं टूटा है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम और आखिरी दिन आज, लेकिन आसार है कि विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है आज भी कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होगा या फिर अंतिम दिन भी सदन में टकराव का वातावरण बना रहेगा। संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आज किसी सहमति का रास्ता निकलेगा या फिर पूरा सत्र बिना सार्थक चर्चा के ही समाप्त हो जाएगा। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अंतिम प्रयास भी किया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को सीधा रुख करेंगे जहां पर लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देखिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding status of implementation of the recommendation of the statement regarding status of implementation of the recommendation of the Parliament Standing Committee. Third report, communication on information technology on demand for grants 2020. Communication on information to the Minister. ये अभी की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित है। सदन में विपक्ष का लगातार आज भी हंगामा जारी रहा और इस हंगामे के चलते
for grant 258-2025-26 of the department related parliamentary standing committee on home department related parliamentary standing committee on home affairs 2627 pertaining to Ministry of Development of North-Eastern region pertaining to Ministry of Development of Honorable North-Eastern members, region. I have Thank you. received a request from the Honorable members, let me I have make my received a announcement. request from the honorable members. I have received a request from the honorable minister of parliamentary affairs. I have received a request from the honorable minister of parliamentary affairs. Mines and minerals. To take up for consideration and passing the Mines and Mineral Amendment Bill 2026 and the Regulation Amendment Bill 2026. Yes, passed by the Lok Sabha on question hour. Dispensing the considering the importance of the bill on question hour. Considering the importance of the bill, the monsoon session, the fact that the House agrees in the last day of the monsoon session, the House agrees on the question of may be dispensed to the chair to enable the House, may be take up a bill immediately to enable the House. The answers to the questions already listed will accordingly be the answers to the questions already listed will accordingly be treated as live. I have the sense of the House. I have the sense of the House. Shriman G. Kishan Reddy ji, to move a motion, G. Kishan Reddy ji, to move a motion for consideration amendment 2026. Amendment 2026. And regulation amendment bill 2026 passed by the Lok Sabha amendment bill 2026 passed by the Lok Sabha taken into the consideration. Motion one amendment given by Shriman Tiruchi Siva. There is one amendment given by Shriman Tiruchi Siva. For reference of the mines, I am coming back to you. One amendment given by Shriman. There is one amendment given by Shriman. I understand the importance of that issue. I understand the importance of that issue. I know I will come back to you. I will come back to you. I know I will come back to you. Everyone is against untouchability. I am coming back to you. Everyone is against untouchability. I am coming back to you. I am telling Shriman Tiruchi Shivaji. There is one amendment Mines and Minerals Development Regulations Amendment Bill 2026. Mines and Minerals Development Regulations Amendment Bill 2026 of the Rajya Sabha. Passed by the Lok Sabha. To a select committee of the Rajya Sabha. Amendment at this stage without any speech. May move the amendment at this stage without any speech. Are you moving the amendment mode? The amendment mode. I am coming back. Definitely I am coming back. I am coming back. Definitely I am coming back to you. I understand. I understand I am coming back to you. I understand. I understand I am coming back. Definitely I am coming back to you. We are shouting I can't help. Definitely I am coming back. We are shouting I can't help. Understand. I understand I am coming back to you. I am coming back to you. Definitely I am coming back. We are shouting I can't help. पंडित जी जहाँ पर भाषण देते हैं उस जमीन का शुद्धिकरण किया जाता है। Motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े गर्म तरीके से यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाया। I am coming to you. और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। हंगामे की भेंट, पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चित काल के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। Kharge is insulted, that means everyone is insulted. Why you are shouting? I am coming back to you, I am telling. I am coming back to you. सर बड़े दुख
और इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे, इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सुरेंद्र जी, जैसे आपने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, हमने शुरुआत से देखा है, चौथा हफ्ता था ये, अंतिम दिन था आज। एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि आज शायद जनता के मुद्दों की संसद में चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि इस कार्यवाही को स्थगित किया गया। मॉनसून सत्र हो, संसद में कोई बात हो, जनता के मुद्दों को लेकर उठाई जाती है, लेकिन विपक्ष इतना हंगामा करता है कि जनता की तो बात हो ही नहीं पाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर अब? नहीं, देखिए, ऐसा होता है ना कि अब जो नया संसद का स्वरूप बना है, उस स्वरूप में विपक्ष सिर्फ ये चाहता है, क्योंकि अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है और जो भी कुछ संसद में आवाज उठेगी वो सभी लोग सुनेंगे। तो विपक्ष की दुविधा ये है कि वो कोई भी प्रश्न उठाएगा तो उसका जवाब मिलेगा, और अगर उसका जवाब मिलेगा तो जिन लोगों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब सरकार जवाब देगी तो सरकार की बात भी लोगों के सामने आएगी। तो इसीलिए हमेशा से विपक्ष यही कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक ऐसा मुद्दा ले लो जिसमें आप सरकार को घेरो, उसकी आवाज उठाओ, बायकॉट करो, शोर मचाओ, सदन को चलने नहीं दो, ताकि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो देखें कि हाँ, विपक्ष बहुत लड़ रहा है, सरकार से लड़ रहा है और अपनी बात को बड़े जोर शोर से रख रहा है। बस इतनी सी बात है, इसीलिए चलेगा नहीं। ये जो विषय था कि भाई आप अमित शाह जवाब देंगे तो हम जो है सदन चलेगा, तो अमित शाह तो बहाना था, एक्चुअल हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second ji, you take your seat. Tarun Suk, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Tiwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? Now, मैंने पहले कहा, House will respond. You please wait your seat. मैंने पहले कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब,
whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is wrong. How do I know that We we all are. No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। So, one minute. Let me make my observation. You please take your seat. Kharge ji. सर मैं That is true, then you can. No. सर मैं सिर्फ नड्डा साहब के लिए नहीं बोल रहा, नड्डा साहब की बात नहीं है। मैं नड्डा साहब और किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, पुलिस स्टेशन में, यही मेरी मांग है। I will make my observation. If untouchability is not a sin, there. No. Member, please take your seat. No, please take your seat. Nothing will go on record. Please take your seat. No. You please take your seat. If untouchability is not a sin, there is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything, we all condemn untouchability and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadaji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Shriman Praveen Chakravarti ji has given a notice rule 157 for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the said rule. Further, there is no provision either in the Constitution of India or in the rules of the procedure and conduct of the business in the Council of States Rajya Sabha for giving a notice for disapproval of a bill. Hence, this notice is not admitted. Now, I call upon Srimati Sagarika Ghosh. Yeah, that when I am going for it, I will put the amendment for the vote when I am going for it. Now I am calling the speakers. Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill. We are in Independence Day week. When we celebrate the independence of India, we celebrate parliamentary democracy. So it is a sad day that in parliamentary democracy today, the Home Minister cannot be bothered to come to the House. You are not talking about the bill. Nothing will go on record. Now Shriman Tarun Sukh ji, please take your seat. सभापति महोदय, नायक जी, मैं खनन और खनिज विकास सर्वजनिक संशोधन 2026 पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसकी सपोर्ट के लिए। तो सुरेंद्र जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, लोकसभा की कार्रवाई तो फिलहाल के लिए स्थगित है, राज्यसभा की कार्रवाई लेकिन लगातार चल रही है। लेकिन जब ये कहा गया, अमित शाह ने भी आज स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि चर्चा जो है वो पूरी रहे, लेकिन उसके पलट में राहुल गांधी का जो जवाब आया, राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह का कोई लेक्चर नहीं सुनना है। अब इसको क्या समझा जाए?
कि आप कहीं ना कहीं सदन ना चलने की बात पहले से ही आपने डिसाइड करके रखी है? नहीं, वो तो पहले से ही रखी हुई थी। मैंने आपसे उस समय कहा था जब हम डिबेट शुरू कर रहे थे कि इनका एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि जो FCRA कानून में संशोधन आए हैं वो बिल लोकसभा में चर्चा के लिए नहीं आए, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो ये पिछले सेशन में ही हो चुका था और ये पास ना हो। वो विपक्ष ये चाहता था कि इसे सरकार वापस ले, वही वो दबाव बना रहे थे हर तरफ से घूम फिर के। और जब देखा कि अब 2 दिन बचे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो सरकार ने भी क्या किया, बड़ी समझदारी से उस बिल को JPC में भेज दिया। उसका भी विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन वो तो JPC में चला गया, क्योंकि उसके लिए तो इनके पास मेजॉरिटी है। अब वो वहां JPC में डिस्कस होगा, लेकिन वो जो विपक्ष चाहता था कि वापस ही हो जाए, सरकार इसको विड्रॉ कर ले, वो हुआ नहीं। अब वो जो बिल है, वो बिल उन लोगों को परेशान करेगा जो लोग विदेश से फंड लेते हैं और उसका यहाँ पे दुरुपयोग करते हैं, और उसको सरकार की नीतियों के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश के धर्म के खिलाफ उसका उपयोग करते हैं। तो उसमें ऐसे 3-4 सुधार हैं जो कि वो जिसको बोलते हैं ना, उसकी थोड़ी स्क्रू टाइट करने वाले हैं उस बिल के, और उसको ज्यादा डिटेल में करके और इस तरह का बना दिया। तो वही पर्पस था। अब उसके उनको तो अमित शाह को थोड़ी सुनना है। अमित शाह वो तो जब नीट पर जब डिस्कशन हुआ था, नीट पे जो कानून आया था, नीट को कानून को, वो पेपर लीक को मजबूत बनाने के लिए, तो उस समय तो 21-22 घंटे डिबेट हो गई थी दोनों सदनों में। तो उसमें ये सारे इश्यू आए थे, उसमें लाठीचार्ज के इश्यू भी आए थे, उसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट के भी आए थे, उसमें अरेस्ट के भी आए थे, FIR, सारे इश्यू डिस्कस हो गए थे। तो कोई इश्यू बचा नहीं था। लेकिन उन्होंने उसको, क्योंकि आपको पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, अगर चली तो FCRA बिल आ जाएगा, बाकी बिल पे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो FCRA बिल पे इसीलिए वो इसको ये कह के कि अमित शाह है, अमित शाह जवाब दें, अमित शाह माफी मांगे। जब अमित शाह ने कहा मैं जवाब दूंगा, तो फिर वो 2 कारणों से स्थिति में नहीं है। एक तो FCRA पे अब कुछ बचा नहीं कहने के लिए, JPC में चला गया, और दूसरा ये है कि इसी बीच में जो झारखंड में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जैन जी का, वो प्रोटेस्ट हाथी की तरह खड़ा हो गया है विपक्ष के सामने। मतलब जो वहां पक्ष है और दिल्ली में विपक्ष है पार्लियामेंट में, अब वहां पे भी लाठियां चली हैं, वहां पे भी पानी की बौछार है, वहां पे भी अश्रु गैस है, वहां पर भी भूख हड़ताल है, वहां पर भी छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जबरदस्ती गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, उनमें फूट डालने की कोशिश हो रही है, और उनकी मांगे मानी नहीं जा रही है। तो क्या जवाब देंगे राहुल गांधी और उनकी पार्टी, जो JMM की वहां पे सरकार है, कांग्रेस समर्थित, कम्युनिस्ट समर्थित, तो वो यहाँ क्या जवाब देंगे? उन पे जवाब नहीं बनेगा। अच्छा, पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तो कोई वन साइडेड तो होगी नहीं, उसमें भाजपा के NDA के भी MPs अपनी बात रखेंगे, विपक्ष के भी रखेंगे, और फिर अमित शाह तो जो भी रखेगा उसकी सभी बातों का जवाब देना होगा। वो ये तो नहीं कह सकता कि भाजपा के लोगों ने जो विषय उठाया उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। तो कुल मिला के क्या होता कि ये सारी डिबेट का फोकस झारखंड पे हो जाता, और वो विपक्ष चाहता नहीं कि झारखंड डिस्कस हो, क्योंकि वहां तो उनकी अपनी सरकार है। तो इसीलिए ये जो इन्होंने 6-7-8 दिन खींचे, वो सिर्फ FCRA बिल को पेश नहीं होने दिया जाए, उसको विड्रॉ हो, उसी के लिए इनकी सारी स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, क्योंकि बाकी जो कानून है वो तो डिस्कस हो रहे हैं, पास हो जाएंगे, लोकसभा से पास हो जाएंगे, उसमें ऐसे कोई विषय है नहीं। वंदे मातरम का हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का हो चुका है, MSME का हो चुका है, जितने भी जो कैपिटल गेन्स पे जो अमेंडमेंट था इनकम टैक्स एक्ट में, मतलब बिल तो सारे ही हो गए ना, कोई बिल बचा नहीं है FCRA छोड़कर, और जो एक बचा हुआ है उस पर आज डिस्कशन हो रहा है राज्यसभा में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं चाहता किसी भी विषय पर, वो चाहता है कि उन विषयों को पकड़े जो सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, जिसपे हंगामा हो, और देश की जो जनता है बिल्कुल सुरेंद्र वो जी उनको देखे। बिल्कुल आप सही तो अगर ऐसा कोई विषय नहीं है तो कोई बात ही नहीं करेंगे वो लोग। अभी आप देखिए खड़गे जी उस बात को कितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी आपने देखा वो एक लुंगी को लेकर के लोकसभा में काफी हंगामा मचा, जो अभी TMC से भाजपा की
सांसद और ये बनी भी है सवाल पुरानी उठाए कांग्रेस जा की रहे हैं कि लीडर। जंतर मंतर पर लाठियां चली जो छात्रों पर, वो किसने बरसाई, इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन विपक्ष को ये नजर नहीं आ रहा है झारखंड में भी तो बच्चों पर लाठियां चलाई गई, झारखंड में तो तारों की केबल लगाई गई थी, जालीदार नुकीले तारों का इस्तेमाल किया गया। उसका जवाब विपक्ष के पास नहीं होगा क्योंकि सरकार वहां पर उनकी है। हालांकि राजनीति यही कहती है कि जब हमारा हो तो हम जवाब नहीं देंगे, जब तुम्हारा हो तो हम तुमसे जवाब लेंगे। फिलहाल समय का अभाव है। सुरेंद्र जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।